Very good morning to Devangi and Dipraj. Let's go with the disclaimer. It is hereby declared that the production of the said content is meant for non-commercial, scholastic, and research purposes only. We admit that some of the content or the images provided in this channel's video may be obtained through the routine Google image searches, and few of them may be under copyright protection. Such usage is completely inadvertent. It is quite possible that we overlook to give full scholarly credit to the copyright owners. We believe that the non-commercial, only for educational use of the material, may allow the video in question fall under fair use of such content. However, we honor the copyright holders' rights and the video should be deleted from our channel in case of any such claim received by us or reported to us. Today we are going to complete our last topic of PPT1 that I have shared on Google Classroom. And the last topic is strategic group mapping. Okay guys, so we'll start with the last topic, that is strategic group mapping. Now we have done with the basics of strategy, strategic management process, resource-based model, industrial organization model of above average return. We have done with the corporate level strategy, business level strategy, functional level strategy. We have done with the Porter's 5 forces model. We have done with the pestle analysis and many more things that we have covered till date. Then the KSF, key success factor and driving forces. Now this is the last topic that is going to plot your company in a chart where you can see your current status in the market. स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग जो है वो सिंपली मैंने आपको ब्रीफ किया था, एक बार फिर से ब्रीफ कर रहा हूँ कि वहां पे आपको अपनी कंपनी को प्लॉट करना है. डिपेंड्स ऑन योर मार्केट शेयर, डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी इन द मार्केट एंड ऑन द प्राइसिंग फैक्टर्स. सो स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग जो है उसमें दो वेरिएबल्स रहेंगे. पहला है अवेलेबिलिटी इन द मार्केट एंड दूसरा है आपका प्राइसिंग और क्वालिटी फैक्टर्स. इट्स अ वेरी सिंपल, वेरी इजी प्रोसेस दैट वन कैन कंटिन्यू एंड इट्स रियली वेरी नाइस टू. ये आपको दिखाएगा कि आपकी कंपनी आज मार्केट में कहाँ पे है, कौन सी पोजीशन में है, कितनी जगह पे अवेलेबल है, आपके कंपटीटर्स की क्या पोजीशन है, वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है एंड सो ऑन. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स. Strategic group mapping is a technique for displaying the different market or competitive position that rival firms occupy in the industry. Same time आपको आपकी कंडीशन भी मालूम पड़ेगी. राइवल जो है आपका कंपटीटर्स जो है उसकी मार्केट में पोजीशन क्या है, आपकी मार्केट में पोजीशन क्या है, आपकी प्रोडक्ट कहाँ पे है, आपके कंपटीटर्स की प्रोडक्ट कहाँ पे है, एंड टू मेनी थिंग्स दैट यू विल कम टू नो अबाउट दिस थिंग्स. A strategic group is a cluster of firms in an industry with similar competitive approaches and market positions. यहाँ पे हम बात करेंगे ऐसी कंपनीज की
जिसके पास सिमिलर कंपीटिटिव अप्रोचेस है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल कंपनीज की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल कंपनीज लाइक रिलायंस, एसआर, सेल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी एंड फ्यू अदर कंपनीज। अगर हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर में फोर व्हीलर की, तो हम बात करेंगे टोयोटो, होंडा, मारुति, किया, मतलब ये किया, देन हेक्टर एंड फ्यू अदर्स, एमजी। तो सेम इंडस्ट्री से जो बिलोंग्स करती है उसी को हम कंपेयर यहाँ पे कर सकते हैं। हम रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंपैरिजन जो है वो आप एप्पल के साथ नहीं कर सकते। हम गूगल का कंपैरिजन जो है वो ज्योति सीएनसी के साथ नहीं कर सकते। सो द कंपनी हु हैव सिमिलर competitive approaches and market positions, we can go with the strategic group mapping of those companies only. नाउ कहाँ पे ये थोड़ा प्रिसाइजली यहाँ पे कर दिया है कि कौन कौन सी कंपनीज को आप स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग में ऐड कर सकते हो। नाउ कंपनीज इन द सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप कैन रिसेंबल one another in any of the several ways, like having comparable product line and length. तो मेरी जो प्रोडक्ट है कस्टमर जो है उसको लाइक करता है, अब कंपटीटर्स के पास भी ऐसी ही प्रोडक्ट है जो दूसरे कस्टमर्स भी लाइक करते हैं। सो कंपेरेबल प्रोडक्ट वेयर यू कैन हैव कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ टू प्रोडक्ट्स, लाइक ओप्पो का फोन देख लीजिए और वन प्लस का फोन देख लीजिए, दोनों में आप कंपैरिजन कर सकते हो। लाइक आप होंडा का एक्टिवा देख लीजिए और टीवीएस का एक्सेस देख लीजिए, दोनों में आप कंपैरिजन कर सकते हो। सो कंपेरेबल प्रोडक्ट एंड लाइन जो है वो होनी चाहिए। सेल इन सेम प्राइस और इन द सेम क्वालिटी रेंज, प्राइसेस सेम मतलब एग्जैक्ट कट टू कट होना जरूरी नहीं है, बट ऑलमोस्ट इक्वल प्राइसेस जो है वो होने चाहिए। जैसे कि होंडा एक्टिवा 80,000 में मिल रहा है तो एक्सेस जो है वो 78 के या तो 82 के आसपास में मिल रहा हो, प्लस माइनस 5% वेरिएबल इज acceptable everywhere in the world. So sell in same price or you can say in the same quality, then having same distribution channels, सभी के पास distribution channel जो है वो same ही है, having same distribution channels that they are using, then have same product attributes to appeal similar types of buyers. Buyers को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए सेम प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स, मेजॉरिटी एट्रीब्यूट्स विल रिमेन सेम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें कुछ नहीं होगा। अगर हम बात करें फोर व्हीलर सेगमेंट की, सी सेडान सेगमेंट की, तो होंडा के पास भी सेम फीचर्स वाली प्रोडक्ट होगी, सुजुकी के पास भी सेम होगी, मारुति सुजुकी के पास, टोयोटो के पास भी सेम होगी। अगर हम बात कर रहे हैं मर्सिडीज की, तो मर्सिडीज में जो बेसिक मॉडल है, बीएमडब्ल्यू में जो बेसिक मॉडल है, ऑडी में जो बेसिक मॉडल है, तीनों के एट्रीब्यूट्स, तीनों के फीचर्स जो है वो सेम ही रहेंगे। और अगर हम मर्सिडीज की सी क्लास की बात कर रहे हैं और बीएमडब्ल्यू या ऑडी A8 की बात करेंगे तो वहां पे कंपैरिजन नहीं होगा क्योंकि प्राइस डिफरेंस काफी बढ़ जाता है। तो ऐसी प्रोडक्ट जहां पे प्राइसेस जो है ऑलमोस्ट इक्वल हो, उसको आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। Then depends on the identical technological approaches, what kind of technological approaches that they guys have adopted, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, offers buyers similar services and technical assistance, सेम सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे, सेम असिस्टेंस आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप होंडा एक्टिवा परचेस करते हो तो उसमें भी आपको 3 या 4 सर्विस मिलेगी, एक्सेस परचेस करते हो तो उसमें भी आपको 3 या 4 सर्विस मिलेगी। अगर आप सैमसंग का फ्रीज परचेस करते हो तो उसमें भी वो आपको सेम सर्विस देंगे। अगर आप डाइकिन का एसी परचेस करते हो तो उसमें भी आपको सेम टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा। ओ जनरल का परचेस करते हो तो उसमें भी आपको सेम टेक्निकल सपोर्ट जो है वो मिलेगा। सो ये सब चीजें जो है वो वहाँ पे फिट बैठनी चाहिए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग जो है वो कर सकते हो। उसके लिए सिंपल 4 स्टेप है जो आपको करने हैं, जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट द फर्म्स इन द इंडस्ट्री। आप वो आइडेंटिफाई करो कि भाई कौन सा कॉम्पिटिटिव कैरेक्टर है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपकी फर्म जो है वो डिफरेंट हो रही है, whether it is product, whether it is availability, whether it is market share, whether it is pricing or whether it is anything, it can be anything। एंड उसके बाद वो चीज जो आपने आइडेंटिफाई की है उसको 2 वेरिएबल्स में डिवाइड कर दो।
वेरिएबल्स जो है वो रहेंगे मार्केट अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग और क्वालिटी। मार्केट अवेलेबिलिटी या तो कम रहेगी या तो ज़्यादा रहेगी, और प्राइसेस जो है वो भी कम रहेंगे या तो ज़्यादा रहेंगे। सो स्टेप नंबर 2, प्लॉट द फॉर्म ऑन अ टू वेरिएबल मैप यूजिंग पेयर्स ऑफ दिस डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई किए, एक है मार्केट अवेलेबिलिटी एंड दूसरा है प्राइस और क्वालिटी। सो अब उसको प्लॉट करना है मैप में। कैसे करना है वो सब चीज़ें आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, टेक इट इजी। देन थर्ड वन, assign firms that fall in about the same strategy space to the same strategic group। ऐसी कंपनीज को आप फाइंड आउट कीजिए जो सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप में आती हो। एंड एट लास्ट, ड्रॉ सर्कल। जितनी बड़ी कंपनी है, जितना बड़ा उसका मार्केट शेयर है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। वहां पे जितना मार्केट शेयर ज्यादा होगा, उस कंपनी का सर्कल उतना ही बड़ा आपको ड्रॉ करना है। अगर कंपनी का मार्केट शेयर कम है तो आपको उसका सर्कल छोटा ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ सर्कल अराउंड ईच स्ट्रेटेजिक ग्रुप, मेकिंग सर्कल्स प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द ग्रुप शेयर ऑफ टोटल इंडस्ट्रीज सेल्स और रेवेन्यू। अब मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जियोग्राफिकल कवरेज, और यू कैन से द अवेलेबिलिटीज। जियोग्राफिकल कवरेज एक हमारा वेरिएबल्स है, दूसरा वेरिएबल्स है हमारा प्राइस एंड क्वालिटी। जियोग्राफिक वेरिएबल्स, जियोग्राफिक कवरेज जो है उसमें या तो कंपनी काफ़ी सारी लोकेलिटीज़ में अवेलेबल है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में अवेलेबल है, या तो काफ़ी कम जगह पे अवेलेबल है। सो लो टू हाई, फ्यू लोकेलिटीज़ टू मेनी लोकेलिटीज़। देन प्राइजेस जो है वो प्राइजेस कम है, मीडियम है, हाई है, किस हिसाब से, उस हिसाब से आपको ये कंपनी को वहां पे प्लॉट करना है। अब यहाँ पे एग्जांपल है, आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में नीचे मेनी लोकेलिटीज के साथ आपको सबसे बड़ा सर्कल जो है वो दिख रहा है वॉलमार्ट का एंड के मार्ट का। क्योंकि वॉलमार्ट एंड के मार्ट जो है वो दुनिया में 150 से ज्यादा कंट्रीज में फैली हुई है, 150 से ज्यादा कंट्रीज में उसका बिजनेस है, एंड वो जो भी प्रोडक्ट सेल करती है वो रीजनेबल प्राइजेस में शो करती है। दैट्स व्हाई जियोग्राफिक कवरेज में वॉलमार्ट जो है वो मेनी लोकेलिटीज में आएगा, एंड प्राइस क्वालिटी में अगर हम देखें तो वो लो प्राइस में आएगा। उसी हिसाब से दूसरी कंपनी सबसे ऊपर गुची, जो शायद आपने नाम सुना होगा, गुची कंपनी जो है वो प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स सेल करती है, तो वहाँ पे वो अवेलेबल है काफ़ी कम जगह पे, फ्यू लोकेलिटीज में अवेलेबल है, सभी जगह पे सभी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, सिलेक्टेड कंट्रीज में वो अवेलेबल है, एंड उसके प्राइसेस जो है वो हाई है और उसका मार्केट शेयर जो है वो कम है, तो इसलिए उसका सर्कल छोटा है, वो बिलोंग्स करती है फ्यू लोकेलिटीज में, इसलिए उसके कंपेयर में वो प्राइसेस हाई भी रख सकती है। सो इसलिए प्राइस को और फ्यू लोकेलिटीज को ध्यान में रखते हुए गुची जो है वो सबसे ऊपर है फ्यू लोकेलिटीज में एंड हाई प्राइस में, तो उस हिसाब से आप उसको चार्ट में वहां पे प्लॉट कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट बेसिक अबाउट द स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। इट्स अ वेरी सिंपल। कंपनी जितनी बड़ी है उतना बड़ा उसका सर्कल रहेगा, कंपनी जितनी जगह पे अवेलेबल है उस हिसाब से आपको उस कंपनी को ये चार्ट में प्लॉट करना है। अब फॉर एग्जांपल के लिए, जस्ट टू कंफर्म कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि नहीं, इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल पूछता हूँ। जैसे कि मारुति सुजुकी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है, मारुति सुजुकी, उसको ये चार्ट में आप कहाँ पे रखोगे? आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू गाइस। मारुति सुजुकी को ये चार्ट में आप कहाँ पे रखोगे? यस गाइस, मारुति सुजुकी को आप कहाँ पे रखोगे ये चार्ट में? ओके, मारुति सुजुकी जो है वो काफ़ी सारी जगह पे अवेलेबल है। आपको मालूम है, हम इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में आप कहीं पे भी जाओगे
आपको मारुति जो है, मारुति सुजुकी का शोरूम है, उसका सर्विस स्टेशन जो है वो मिल जाएगा। तो जियोग्राफिक कवरेज में अगर हम देखें तो वो मेनी लोकेलिटीज में अवेलेबल है। मारुति सुजुकी जो है वो मेनी लोकेलिटीज में अवेलेबल है। तो एक तो उसका प्लेस फिक्स हो गया कि भाई ये आएगी मिनी लोकेलिटीज के साइड में ही। अब उसका प्राइसिंग फैक्टर आपको देखना है। तो प्राइसिंग जो है वो दूसरी ब्रांड जो है उसके कंपेयर से तो इसका प्राइसेस कम है, तो वो लो प्राइस में आएगा, लो प्राइस में आएगा एंड जियोग्राफिक कवरेज में मेनी लोकेलिटीज में आएगा। तो आप मारुति सुजुकी को ये वॉलमार्ट का जो सर्कल ड्रॉ किया है ना, उसी की जगह पे आप उसको रख सकते हो, क्योंकि मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर भी ज्यादा है, वो मेनी लोकेलिटीज में अवेलेबल है विथ कम प्राइस, विथ लोअर प्राइस। तो वॉलमार्ट का जो सर्कल है उसी जगह पे आप मारुति सुजुकी को रख सकते हो। क्लियर? नाउ दूसरा क्वेश्चन, एसबीआई। एसबीआई बैंक जो है उसको आप यहाँ पे कहाँ रख सकते हो? ये चार्ट में एसबीआई बैंक को इस चार्ट में आप कहाँ पे रख सकते हो? Yes, guys. May I have the answers, please? एसबीआई को भी आप सेम ही, क्योंकि एसबीआई बैंक जो है वो इंडिया में सभी जगह पे अवेलेबल है और उसका मार्केट शेयर भी ज्यादा है। तो एसबीआई को भी आप वॉलमार्ट की जगह पे ही रख सकते हो, मेनी लोकेलिटीज में अवेलेबल है और उसके अकाउंट के चार्जेस और वो सब जो है वो भी कम है। तो लो प्राइस एंड अवेलेबिलिटी एट मेनी लोकेलिटीज, तो उसकी वजह से आप एसबीआई को यहाँ पे रख सकते हो वॉलमार्ट और के मार्ट की जगह पे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करता हूँ कि आप लेम्बोर्गिनी को या तो रोल्स रॉयस जो है उसको आप ये चार्ट में कहाँ पे रखोगे? रोल्स रॉयस जो है उसको आप ये चार्ट में कहाँ पे रखोगे? यस, यस एग्जैक्टली, फ्यू लोकेलिटीज एंड हाई प्राइस। मतलब आप देख सकते हो कि गुच्ची और वो जो लिखा है ना, गुच्ची, चैनल, फेंडी, वहां पे आप रोल्स रॉयस को रख सकते हो। अगर हम बात करें BMW, ऑडी एंड मर्सिडीज की, तो उसको आप कहाँ पे रख सकते हो? उसको एग्जैक्ट में जो सेंटर वाला जो स्क्वायर बॉक्स है आप उसमें रख सकते हो। जियोग्राफिकल कवरेज जो है वो ना ही सबसे कम है ना ही सबसे ज्यादा है, और प्राइसेस जो है वो ना ही एकदम लो है ना ही एकदम हाई है। तो ये जो बीच वाला एकदम स्केल है जहाँ पे लिखा है गैप, बनाना रिपब्लिक, आप BMW, ऑडी एंड मर्सिडीज को वहां पे रख सकते हो। So this is all about the strategic group mapping. दो वेरिएबल्स को सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, अवेलेबिलिटी और यू कैन से द जियोग्राफिकल कवरेज एंड प्राइस एंड क्वालिटी। Geographical coverage at few localities or many localities, and price is very high, medium or low. So any questions for this entire PPT1, guys? No, sir. The PPT1 that we have completed. ओके ग्रेट, सो प्लीज बी ऑनलाइन। मैं आपको थोड़ा सिलेबस जो है वो बता दूं तो आपको भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि हाउ मच वी हैव कवर्ड एज फार एज योर मिड सेम इज कंसर्न।
ये हमारा सिलेबस है। मॉड्यूल 1 में हमने देखा इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजी, लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी लाइक कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल, डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिसी, स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स। हमने देखा विजन, मिशन एंड गोल्स। उसके साथ में हमने वैल्यूज भी ऐड की। यहाँ पे सिर्फ बेटा ऑलरेडी अपलोडेड है, सभी पीपीटी अपलोडेड है ऑलरेडी आपके पोर्टल में। 2 सॉफ्ट कॉपी भी अपलोड की है बुक्स की, ई बुक। एक है माइकल हिट की और दूसरी है पी सुब्बाराव। पूरी बुक है सॉफ्ट कॉपी, वो भी अपलोड कर दी है। सो हाँ, फर्स्ट मॉड्यूल में विजन, मिशन एंड गोल्स, और उसके साथ हमने ये वैल्यूज भी ऐड किए। सिर्फ कंसेप्ट एंड डिफरेंसेस आपको क्लियर करने थे, बट हमने वो डिटेल में स्टडी किया। देन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसकी डेफिनेशन एंड उसकी प्रोसेस। तो ये सब तो हमने हमारी जो पहली स्लाइड जो अभी तक हम कंटिन्यू कर रहे थे उसमें हमने कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा भी हमने उसमें कुछ चीजें कंप्लीट की है, जैसे कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमने देखा पेस्टल एनालिसिस, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल एंड ऑल दोस थिंग्स। स्वोट एनालिसिस, ये अभी जो दूसरी स्लाइड में आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर से, उसमें आएगा। पीपीटी 2 जो है उसमें वो स्वोट एनालिसिस और वो सब आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डन विद द एनवायरमेंटल स्कैनिंग, पॉलिटिकल, लीगल, एनवायरमेंटल सेक्टर, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ये सब जो है वो हमने कर लिया। इंटरनल एनवायरमेंट जो है वो अभी नेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें फैक्टर एंड मेथड ऑफ एनालिसिस, इंटरनल कंपैरेटिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, ये हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। सो ऑलमोस्ट वी कैन से दैट we have done with our 1.5 module. PPT is there, you can check it out, you can verify it with the syllabus, and if you have any doubts, feel free to ask. So I request all of you to go through with the entire PPT 1, check it out. If you have any doubts, any query, yes, 2 units will be there in the midterm, unit 1 and unit 2. But if I say that this unit 2, we will require only 4 sessions. So latest by next week, latest or max to max by next week, we will complete this. We will complete with our 2 modules, or you can say 2 unit, or you can say 2 lessons. सर यस बेटा, वो प्रोजेक्ट का नाम कभी देना है सर? वो अभी दे दो यार आप लोग मेरे को, तो उस हिसाब से मैं भी एंट्री करूंगा ना। मेरे को सब सभी लोग दिया तो मैं आपको दूंगा सर। हेलो मेरे को सर, हाँ सबने सर मेरे को नहीं दिया है। students, every students are requested to give their group name with company name to Mr. Nakul. Without Nakul, my group's name and company name you got no? આપણે તારું આવ્યું પણ બીજાનું તો આવવા દે. બધાનું જોશે ને ધ્રુવભાઈ, આપણે એક થી Yes, નહીં yes. થાય, આપણે બધાયનું કરવાનું છે. પણ હું તારું એડ કરી દઉં પણ કાલ તારું બીજાનું એડ કરું સર, એમ તો નથી કોઈ સર. ના મન નો ખબર હે ને બધાને તારી પાસે આવ્યું નહીં. આપણે હજી બે સર બે મારું ગ્રુપ નક્કી થયું અને આનું ગ્રુપ નક્કી થયું. કઈ વાંધો નહીં, બાકીનાને કહી દઉં છું, અત્યારે પાછું કહી દઉં છું. स्टूडेंट्स प्लीज इन्फॉर्म योर क्लासमेट्स, अपने जो भी क्लासमेट्स है उसको बता दो, अपना 7 से 10 लोगों का ग्रुप बना लो, 2 कंपनी फाइनल कर लो जिसका स्वोट एनालिसिस आपको प्रेजेंट करना है। दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल, काफी सिंपल है, काफी इजी है। रूब्रिक्स में उसके 10 मार्क है। सर आपने जो बोला 30 तारीख को, उसमें तो सर जन्माष्टमी आती है। आगे पीछे कर लेंगे बेटा, पीछे कर देंगे, डोंट वरी। पीछे करना पड़ेगा ना, आगे नहीं होगा, आगे तो एग्जाम पीछे करना पड़ेगा। डोंट वरी, हम उसको एक्सटेंड पोस्टपोन कर देंगे 2-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, बट यू गाइस बी रेडी, दैट्स इट।
यस सर, ओके। आपके पास पूरा टाइम है, 1 महीने का टाइम है, और टॉपिक भी एकदम इजी है, क्योंकि वो सब चीजें आपने ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट में की है। अभी जो प्रोजेक्ट आपने पास आउट किया उसमें आपने SWOT एनालिसिस तो किया ही है, तो इट्स क्वाइट इजी. So I request all of you to please submit your group name along with 2 company to Mr. Nakul without fail. You can choose company from Fortune 500 list, Global Fortune 500 ऐसा करके आप गूगल में लिखोगे ना तो 500 कंपनी के नाम आएंगे, उसमें से कोई भी 2 कंपनी, any 2 company. Now guys, I'm going to show you one video and how it matters a lot. स्ट्रेटेजी, हाउ इट मैटर्स अ लॉट. मैंने आपको दुबई का वीडियो दिखाया है बेटा, दुबई का वीडियो नो दिखाया. सर। ओके, तो पहले मैं, मेरे पास 4 वीडियो है, तो पहले मैं आपको दुबई का वीडियो दिखाता हूँ कि हाउ दुबई बिकम दिस मच डेवलप्ड कंट्री. उसका पास कुछ नहीं था, रेत ही रेत थी, और उसमें से आज आप देख सकते हो कि एवरी ईयर ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो दुबई को विजिट करते हैं. तो ऐसा क्या हो गया दुबई में? तो प्लीज बी ऑनलाइन. मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि दुबई ने जो जीरो था उसमें से हीरो कैसे बना. यस, मोस्ट विजिटिंग टूरिस्ट प्लेस है. अभी कोविड के बाद भी लोग वहां पे जा रहे हैं, मतलब वो गवर्नमेंट ने अलाउ किया, दैट्स वाई. एंड आपको मालूम नहीं होगा कि, कुछ लोगों को मालूम होगा, आई डोंट नो, कि लोग स्पेशली वैक्सीन लेने के लिए दुबई घूमने जाते हैं. इंडिया में से कई सारे ऐसे फैमिली है जो 1 मंथ की या तो 3 मंथ्स की ट्रिप के लिए दुबई गए एंड वहां पे वैक्सीनेशन का दोनों डोज जो है वो कंप्लीट किया. प्लीज बी ऑनलाइन, आई एम शेयरिंग दैट वीडियो. इट्स रियली वेरी नाइस, must watch. It's a case study by Dr. Vivek Bindra, but yes, I really appreciate the efforts that he has put in preparation of this video. गाइज मैं 1 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें से यूट्यूब नहीं चल रहा, सो प्लीज बी ऑनलाइन. शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से। ये दुबई के रूलर, यूएई के प्राइम मिनिस्टर, बड़े विजनरी लीडर हैं। आम जनता अपना वीकेंड प्लान, ये सैटरडे संडे, और ये 10 साल प्लान करते हैं। लोग सोचते हैं दुबई के पास पैसा तेल के कारण आया। सर मैं आपको शेयर कर देता हूं, तेल का रेवेन्यू दुबई का केवल 1% है। दुबई के रेवेन्यू पूरी तरह शिफ्ट कर दिए, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बना दिया, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को फाइनेंशियल हब बेस्ड इकोनॉमी बना दिया। इनकी जो हिज रॉयल हाइनेस शेख है ना, उनको एक बीमारी हो
स्टडी दुबई के विषय में। ये दुबई के पास अचानक इतना पैसा कैसे आ गया पिछले 20 साल के अंदर? कैसे दुबई ये ग्लोबल डेस्टिनेशन, ग्लोबल हब, थर्ड मोस्ट ट्रैवल्ड सिटी इन द वर्ल्ड, दुबई कैसे इतना पावरफुल बना? कुछ नहीं था दुबई के पास 20 साल पहले तक। यहां पे केवल रेत ही रेत थी। दुबई के पास ना अपना खाना है, ना अपना पानी है, ना अपना कोई मिनरल है, ना अपना कोई गोल्ड है। तो दुबई के पास इतना पैसा आया कैसे? शुरू करते हैं हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से। ये दुबई के रूलर, यूएई के प्राइम मिनिस्टर, बड़े विजनरी लीडर हैं। आम जनता अपना वीकेंड प्लान करती है, सैटरडे संडे, और ये 10 साल प्लान करते हैं। लोग सोचते हैं दुबई के पास पैसा तेल के कारण आया। सर मैं आपको शेयर कर देता हूं, तेल का रेवेन्यू दुबई का केवल 1% है। शिफ्ट कर दी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बना दिया, ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को फाइनेंशियल हब बेस्ड इकोनॉमी बना दिया। इनकी जो हिज रॉयल हाइनेस शेख है ना, उनको एक बीमारी हो गई है। और क्या बीमारी हो गई है? एलर्जी टू एवरेज। कम ऑन, क्या एलर्जी टू एवरेज? उनको कुछ भी एवरेज पसंद नहीं है। दुबई नेवर सेटल्स फॉर एनीथिंग लेस देन फर्स्ट प्लेस। या तो ये दी ओनली वन होंगे या द नंबर वन होंगे। ध्यान दीजिए, कम ऑन, या तो दी ओनली वन या द नंबर वन। अगर मॉल भी बनाएंगे तो दुबई मॉल बना देंगे, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल। अगर टावर खड़ा करेंगे तो बुर्ज खलीफा खड़ा कर देंगे, सबसे ऊंचा टावर। अगर पाम आइलैंड मैन मेड पाम जुमेरा इन्होंने बना दिया। देखिए अंडर वाटर ब्रिज बना देंगे, अंडर वाटर टेनिस खेलने का अरेंजमेंट कर देंगे। दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव 7 स्टार, दी ओनली 7 स्टार होटल इन द वर्ल्ड, बुर्ज अल अरब। एक आम आदमी उसमें घुस ही नहीं सकता बिना अपनी बुकिंग कराए। आप चप्पल पहन के उस होटल में घुस नहीं सकते। जो भी कुछ करना है इनको, नंबर वन या दी ओनली वन। दुबई के अंदर आपकी गाड़ी गंदी नहीं हो सकती। अगर आपकी गाड़ी गंदी है, 200 दिरहम का फाइन आपके अकाउंट से अपने आप कट जाएगा। आप गाड़ी भी दुबई में एक आम आदमी से नहीं धुलवा सकते। गाड़ी धुलवाने के स्पेशल स्टेशन हैं, वहीं पे आप गाड़ी धुलवाएंगे। ऐसा नहीं कि अपने हाथों से गाड़ी धोएं और उनकी जमीन को गंदा कर दे। रेगिस्तान में फूल उगा दिए, दुबई मिरेकल गार्डन, रेत के अंदर फूल, दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा, दुनिया का सबसे ऊंचा 5 स्टार होटल JW मैरियट बना दिया, दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मार्केट गोल्ड सूक बना दिया। यहां तक रुके नहीं, ये गए डिज्नीलैंड के पास। बोले भाई डिज्नीलैंड, एक डिज्नीलैंड दुबई में भी बना दे तू, है जी, लेकिन तेरे अमेरिका के डिज्नीलैंड से बड़ा होना चाहिए। डिज्नीलैंड ने मना कर दिया। बोला अमेरिका का डिज्नीलैंड सबसे बड़ा होगा क्योंकि ये हमारा डिज्नीलैंड है, तो इससे बड़ा नहीं बना। वो शेख बोले हिज हाइनेस, भाई देख सबसे बड़ा चाहिए। जब डिज्नीलैंड दोबारा मना कर दिया, ये बोला चिंता मत कर, मैं बना रहा हूं दुबई लैंड। ये डिज्नीलैंड से 2.5 गुना बड़ा दुबई लैंड, जिसमें हर रोज 2 लाख लोग आएंगे। इतना ये जो है ना, रुकते नहीं है। हिज हाइनेस शेख ये खुद अपने आप में इतने विनम्र हैं, आम आदमी से जुड़े हुए महसूस करते हैं। एक से बढ़कर एक इनोवेशन लेड इनिशिएटिव लिए चले जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 25% बिल्डिंग 3D प्रिंटिंग से बनेंगी दुबई में 2030 तक। 3D प्रिंटिंग समझते हैं? ऑलरेडी 40 माले की बिल्डिंग दुबई के अंदर 3D प्रिंटिंग से बन चुकी है। कम ऑन, दोबारा सुनिए, 3D प्रिंटिंग, प्रिंट आउट निकाल के बिल्डिंग खड़ी कर दी। कोई ब्रिक एंड मॉर्टर को इतना इजी, इतना कन्वीनियंट कर दिया। समझ में नहीं आया? मैंने 3D प्रिंटिंग पे ऑलरेडी एक वीडियो दिया हुआ इससे पहले। आप एक बात समझे, ये रुकने वाले नहीं है। दुबई रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अनाउंस कर दिया है कि अब हम एक पैसेंजर ड्रोन बनाने वाले हैं। क्या? हाँ, पैसेंजर ड्रोन क्या होता है? ये एक आम आदमी जिसका वजन 100 किलो के आसपास हो, उसको 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 50 किलोमीटर की फ्लाइट, एक पैसेंजर ड्रोन, यानी कि ड्रोन में आप बैठो, आदमी को बिठा के ड्रोन लेके जाएगा 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ऑलरेडी तैयारियां हो गई हैं, टेस्ट हो चुके हैं। हिज रॉयल हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, इनका मानना है कि ऑर्डिनरी पीपल दे सेव मनी टू पार्टी, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल दे सेव मनी टू बिल्ड ग्रेट एम्पायर्स। इन्होंने दुबई 10x लॉन्च कर दिया। ये दुबई 10x क्या है? ये चाहते हैं हर चीज 10 गुना हो जाए दुबई के अंदर। सरकार को ट्रेन कर रहे हैं अपनी कि हर चीज को 10 गुना बड़ा कैसे करें, 10 टाइम्स फास्टर, 10 टाइम्स मोर एफिशिएंट एंड 10 टाइम्स बिगर। इनका मानना है, ये दुबई कनाल प्रोजेक्ट भी चालू कर रहे हैं, बड़े फ्री वाईफाई जोन लेके आ रहे हैं। दुबई कनाल प्रोजेक्ट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के तरीके को बदल देंगे। उसी के अंदर स्टिल्ट 200 बड़े घर भी बनाएंगे जिनको ये अलग से बेचेंगे। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, मरीना बीचेस, कितनी चीजें ऐसे। देखिए इसी को बोलते हैं रिसोर्सेज नहीं होना, रिसोर्सफुलनेस होना। अबू धाबी क्यों ग्रो किया? उसके पास तेल है, मैं मान सकता हूं इसलिए ग्रो कर गया, तेल बेच करके, क्योंकि उसको अपना कुछ नहीं करना पड़ा, अपने जमीन से तेल निकाला बेच दिया। बाकी गल्फ कंट्रीज भी ऐसा कर रही हैं, तेल निकाल के बेच रही हैं। दुबई के पास कुछ भी नहीं था। ईज ऑफ कम्युनिकेशन को ये भली बात ही समझते हैं, क्योंकि विजनरी लीडरशिप है, दूर तक की सोचते हैं, तो इसीलिए वर्ल्ड मोस्ट कनेक्टेड स्मार्ट सिटी बना दिया। एक दुबई में हाइपर लूप भी बना रहे कम्युनिकेशन और ट्रैवल के तरीके को। ये क्या है? ये वैक्यूम ट्यूब होती है
जिसमें आप आबू धाबी से दुबई तक 10,000 पैसेंजर 12 मिनट में ट्रैवल कर पाएंगे। दोबारा सुनिएगा, 10,000 पैसेंजर एक ही बारी में 12 मिनट में ट्रैवल कर जाएंगे। क्योंकि दूर तक की सोचते हैं ना, तो इसलिए गाड़ियां भी ड्राइवरलेस कर रहे हैं। इनका कमिटमेंट है 2025 तक 25% गाड़ियां पूरी तरह ड्राइवरलेस हो जाएंगी। ये 30 पैसेंजर की गाड़ी बना रहे हैं कि 30 पैसेंजर आए, मोबाइल से, एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लें और उसी एप्लीकेशन पे क्लिक करें, ड्राइवरलेस गाड़ी इनके पास पहुंचेगी, उसमें 30 पैसेंजर होंगे, इनकी भी सीट होगी, ये भी जाएंगे और डेस्टिनेशन भी डाल दे, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, और गाड़ी इनको वहां जाके छोड़ दे। कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं। ट्रांसपोर्टेशन को भी डिसरप्ट कर दिया। इनको जो पुलिस की सर्विसेज बनाई, क्या है? पुलिसिंग विदाउट पुलिस। ध्यान दीजिएगा, कम ऑन, क्या? पुलिसिंग विदाउट पुलिस। ऐसा सिस्टम बना दिया, स्मार्ट पुलिस स्टेशन बना रहे हैं दुबई के अंदर, एक के बाद एक, जहां पे पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ ऑटोमेट कर दिया, करप्शन का कोई जुगाड़ ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं। ऐसा नहीं पेड़ के पीछे छुप के पुलिस देख रही है, आने तो चालान काटेंगे, कुछ अपना भी बना ले। सिस्टम इन्होंने इतना ऑटोमेट कर दिया कि कहीं आप जाइए वहां पे पुलिस थाने में, वहां पे पुलिस वाला नहीं मिलेगा। आप अपने आप कोई भी क्रिमिनल फाइल रिकॉर्ड चेक कराना है वो आपको मिलेगा। आपको किसी के अगेंस्ट कंप्लेन करना है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई लॉस्ट एंड फाउंड हुआ है, कुछ भी हो, आपको अपने आप उस मशीन से खुद ही सारा काम कर लेंगे। आपको पुलिस वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पुलिसिंग विदाउट पुलिस का फायदा क्या हुआ? एक तो ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं, मैन पावर की जरूरत नहीं, तो मैन पावर का खर्चा खत्म हो गया और ज्यादा पुलिस वाले नहीं है। करप्शन के चांसेस भी अपने आप खत्म कर दिए, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेट होता चला गया। और इनफैक्ट जो बच्चे कुछ पुलिस वाले हैं उनको इतनी बड़ी बड़ी सबसे सुंदर, सबसे एक्सपेंसिव सुपर कार्स दे दिए हैं। दुबई की पुलिस दुनिया की सबसे अमीर पुलिस है। अच्छा देखिए, विजन इतनी दूर का रखते हैं ना कि आप ये समझिए, मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, ये कच्ची मिट्टी के अंदर इतनी ऊंची बिल्डिंग खड़ा करना, ये विजन किसी के पास नहीं है दुनिया में। हमारे देश के अंदर जो कच्ची पुश्ते की मिट्टी होती है ना, जैसे यमुना के किनारे जो मिट्टी है, वहां आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, पक्की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि कच्ची मिट्टी के अंदर पक्की कंस्ट्रक्शन टिकती नहीं है, रुकती नहीं है। तो वहां तो सारी रेत है। दुबई में तो सारी की सारी मिट्टी कच्ची है, तो रेत के अंदर बड़ी बिल्डिंग खड़ी करोगे कैसे? भाई साहब, ये दुनिया के सारे बेस्ट कंसल्टेंट्स को लाते हैं। इनको कोई भी चीज बढ़िया नहीं चाहिए, या तो नंबर 1 या दी ओनली 1। दुनिया के बेस्ट कंसल्टेंट्स को बुलाया इन्होंने। अच्छा, जो ईस्टर्न रेंज की पहाड़ियां थी ना दुबई की, वहां इन्होंने जाके देखा कहीं वी कार्व्ड, ऐसा वी शेप में कार्व्ड वैलीज बनी होती पहाड़ियों के बीच में। तो शेख साहब ने पूछा, एक बात बताओ कि पहाड़ी अपने आप वी कैसे बन जाएगी? ये वैली कैसे बनी है? ये वैली इसीलिए बनी है कि जरूर यहां कभी ना कभी पानी बहा होगा, क्योंकि पानी ही पहाड़ को काट करके एक वैली कन्वर्ट करती है। ये वो कच्ची रेत के अंदर बिल्डिंग जो खड़ी करी है ना, बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, ये जो उन्होंने 40 से ज्यादा स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग, जो 50 माले से ऊंची की बिल्डिंग खड़ी करी है, ये भाई साहब पानी बहुत पीती है बिल्डिंग्स। आप ये समझिए 2 लाख गैलन लीटर पानी हर रोज बुर्ज खलीफा को चाहिए। आप किसी भी इतने 5 स्टार होटल वहां बन चुके हैं, कितना पानी लगता है? ये रेत के अंदर, सूखी रेत में, दुनिया के सबसे सूखे बंजर स्थान पे इतना पानी आता कहां से है? इसे बोलते हैं विजन। उन्होंने क्या किया, वहां जाके पता लगाया कि वो जो वी शेप कार्व्ड वैलीज हैं, उसमें आज से 2 मिलियन साल पहले, यानी कि लगभग 20 लाख साल पहले वहां पानी बहा करता था। इन्होंने वहां खुदाई करवाई और पता लगाया कि कई किलोमीटर नीचे आज भी वहां पानी उस रेत के नीचे दबा हुआ है। इन्होंने वाटर मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट ऐसा बिल्ड किया कि वहां से वाटर एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया, और वो वाटर एक्सट्रैक्ट करते दुनिया की सबसे सूखी जमीन के ऊपर दुनिया के सबसे सुंदर स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग खड़े कर दी। ये जो बिल्डिंग है ना, ये पानी की प्यासी होती है बिल्डिंग। यूएई के 7 एमिरेट्स के अंदर दुबई सबसे लीस्ट कंजर्वेटिव है। लीस्ट कंजर्वेटिव मतलब बड़े खुले दिल का है। 200 देशों की नेशनैलिटीज दुबई के अंदर रहती हैं। दुबई के जो अपने शेख हैं, जो इनके एमिराती हैं, जो इनके अपने लोकल हैं, वो तो केवल 10% भी नहीं होंगे। यहां पे ये क्या करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग दुनिया की बनानी है तो काम करने के लिए दुनिया भर के लोग बुलाते हैं। मैक्सिमम 65% जनता यहाँ पे इंडिया से है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से और फिलिपिनो से है। ये जानते हैं ये जो देश की इकोनॉमी है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेशी, इन लोगों को बुरा लगेगा आपको, मुझे पता है, मैं क्षमा चाहता हूं, उसके लिए पहले ही माफी मांग लेता हूं, लेकिन लेबर के काम के लिए इन लोगों को बुलाते हैं। 50 डिग्री टेम्परेचर को सहने वाली लेबर यही मिलेगी, इनको पता है। 50 डिग्री की उनको मोटिवेट करके उनसे काम कराते हैं। देखिए ये जो है ना, ये बड़े दूर के सोचने वाले शेख हैं। ये कहते हैं भाई हम कुछ नहीं करते, हम तो खाली सोचते हैं, हम खाली थॉट लीडर्स हैं। हमारे जो थॉटफुलनेस इन्होंने बिल्ड करी है, इससे दुनिया के लोगों को बुला के वहां उनसे काम कराते हैं और बैठ करके देखते हैं, दूर तक सोचते हैं। इसे बोलते हैं विजनरी लीडर। दुनिया की किसी भी चीज की बात कर लो, या तो वो दुबई के पास है या वो दुबई बना रहा है। कंस्ट्रक्शन तो यहां इतनी तेज हो रहा है कि दुनिया भर की 1/4 जेसीबी क्रेन्स
आज दुबई में काम कर रही है, यानी कि 1/4 ऑफ द क्रेन्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन दुबई। इतना छोटा सा दुबई लेकिन सबसे ज्यादा तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। इन्हीं लोगों को मोटिवेट करा करा के लेबर से इन्होंने बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब तैयार किया। आज 14 वर्ल्ड रिकॉर्ड है बुर्ज खलीफा के नाम पे। दुनिया का सबसे ऊंचा टावर, दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट, ये भी बुर्ज खलीफा में है। दुनिया के सबसे ऊपर लिफ्ट, वो भी बुर्ज खलीफा में जाती है। दुनिया का सबसे ऊपर फायरवर्क्स, दिवाली के पटाखे, न्यू ईयर के पटाखे, वो भी बुर्ज खलीफा में होते हैं। अब कोई भी रिकॉर्ड ले लो, दुनिया में सबसे ज्यादा फ्लोर, दुनिया में सबसे ऊंचा रेजिडेंशियल प्लेस, दुनिया में सबसे ऊपर हाइट पे नाइट क्लब, ये सारे तो बुर्ज खलीफा में ही है। शेख जानते हैं दुनिया भर का टैलेंट और दुनिया भर का ट्रैफिक मैं अपने पास कैसे लेकर के आऊं। टैलेंट लाने के लिए इन्होंने टैक्स फ्री इकोनॉमी बना दी। वहां पे व्हाइट ब्लैक है और ब्लैक व्हाइट है। क्यों? वहां पे कोई टैक्स ही नहीं है। आप जितना पैसा कमाते हो पूरा आपका, वहां सरकार कोई इनकम टैक्स नहीं लेती। वही मैं सोचता था ये लोग कमाते कहां से हैं जब ये टैक्स भी नहीं लेते। मतलब आप समझिए बात को कि इतनी दूर की सोचते हैं। ये टेम्परेचर कंट्रोल सिटी भी बना रहे हैं। क्या होती है टेम्परेचर कंट्रोल सिटी? एक छोटी सी कंट्री है मोनाको, उसके लगभग 3 गुना बड़ा एक मॉल बना रहे हैं। एक दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा मॉल जो दुबई मॉल से भी कई गुना बड़ा मॉल होगा, और वो इतना बड़ा मॉल होगा कि उसमें कई सैकड़ों होटल्स होंगे, उसमें सड़कें होंगी, उसमें ट्रैफिक लाइट्स होंगे और वो पूरी तरह एयर कंडीशन होगा। यानी कि एयर कंडीशन सड़कें, यानी कि एयर कंडीशन शहर। इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कंट्रोल सिटी। ये जो है ना आदमी, मैं कभी कभार सोचता हूं कि ये सोचता कैसे है। इस शेख के बारे में सोचता हूं, यार ये कितना दूर का सोच लेते हैं। ये मतलब ये बस सोच लेते हैं और उसके बाद कर भी देते हैं उसको। मतलब आप कोई भी डिफिकल्टी दे दो उसको पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट कर देंगे। ये डिफिकल्टी स्कैनर नहीं है, ये पॉसिबिलिटी स्कैनर है। जमीन की कमी थी तो कहां एक्सपैंड करें दुबई को? तो समुद्र के अंदर टापू बनाने शुरू कर दिए, मैन मेड आइलैंड। आज तक नेचर आइलैंड देता था, इन्होंने मैन मेड आइलैंड बना दिए। बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी चट्टाने तोड़ के ड्रेजर्स के माध्यम से सैटेलाइट से लेकर के पाम जुमेरा बनाया। वो सैटेलाइट से ऊपर देखते थे कि जुमेरा ऐसा 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 करके ट्रंक के साथ एक ऐसा पेड़ बना दूं, पेड़ की शेप में पाम जुमेरा बना दूं, जहां पे मैं बड़े बड़े महंगे मकान बेचूंगा, जो बीच फ्रंट, बीच फेसिंग लग्जरी विलास होंगे। अब देखिए एक बात समझिए, किसी को टापू बनाना है तो वो गोल टापू बना के काम खत्म कर देगा। भाई गोल टापू बन गया मेरा। इन्होंने क्या टापू को गोल नहीं बनाया। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने सोचा गोल टापू बनाऊंगा तो कोने कोने पे बीच फ्रंट मकान बड़े लिमिटेड बनेंगे यार। तो कुछ ऐसा करें कि इतनी सी जमीन के अंदर ज्यादा मकान में कैसे बेचूं। एक मकान ये बेचते 350 करोड़ रुपए का। रेवेन्यू देखिए कैसे निकालते हैं। हाँ, पैसा कमाने के तरीके देखिए। जब जेब में कुछ नहीं होना, जब कमी हो रही है और देख रहे हैं बाकी सारी जीसीसी कंट्री तेल बेच के नोट छाप रही है, मैं कैसे छापूं। तो इन्होंने क्या किया, उसमें ऐसा 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 लीव बना दी जिसमें हर कोने पे लीव की पाम जुमेरा। हाँ, हर कोने पे इस तरफ फेसिंग, फिर इस तरफ फेसिंग, फिर इस तरफ फेसिंग, फिर इस तरफ फेसिंग, इस तरफ फेसिंग, इस तरफ फेसिंग। एक गोल बनाते तो थोड़े मकान बनते। अब इन्होंने पाम बना दिया तो मकानों की क्वांटिटी 5 गुना बढ़ गई। अच्छा, क्या है ना, कमिटमेंट टू ट्रेड इज देयर बिगर रीजन टू सक्सेस। बात समझिए, कमिटमेंट टू ट्रेड। ये ट्रेड को बिल्ड करने पे इतने कमिटेड है। दुबई वाज नॉट फाउंड ऑन ऑयल, इट वाज फाउंड ऑन ट्रेड। ये तेल के कारण नहीं चला। देखिए ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिए, फ्री बिजनेस जोन बना दिए। ये जो टैक्स फ्री इकोनॉमी बनाई ना इन्होंने, ईज कर दिया बिजनेस को यहां पे कन्वर्ट कर। देखिए 3rd लार्जेस्ट री एक्सपोर्ट की इकोनॉमी है। किसी को भी दोबारा माल बेचना है तो पहले दुबई से पहुंचा करके फिर दुनिया में पहुंचाता है। दुनिया के हर बड़े देश से 5 घंटे की इनकी फ्लाइट है और इनकी एयरलाइंस की सर्विस बहुत जबरदस्त है। ये हर वो काम कर रहे हैं जिससे इनकी ट्रेड बढ़ता हो। दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड एक्सपो ये इस बार 2020 में दुबई में लेके आ रहे हैं। 3.25 लाख नौकरियां भी बढ़ेंगी उससे। ये वर्ल्ड एक्सपो के अंदर पूरी दुनिया का कुछ भी होगा वो सब दुबई में मिलेगा। एक्चुअली क्या है, ये कई प्रकार से ग्रो करते हैं। उनमें से एक और तरीका जिससे कमाते हैं वो है फाइन्स। इतने फाइन लगा दिए इन्होंने दुबई के अंदर कि ये फाइन के कारण, पेनल्टीज के कारण जनता एकदम सीधी रहती है। भैया यहाँ कोई गलती नहीं करना। हाँ, किसी लड़की पे हाथ लगा दिया तो आपका वो हाल होगा, आप सोच नहीं सकते। अगर आपने कोई रेड लाइट जंप कर दी तो फाइन के लिए कोई आपको रोकेगा नहीं। आपके अकाउंट से 200 दिरहम अपने आप कटते चले जाएंगे। आपने मतलब गाड़ी गंदी के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर आपके यहाँ चेक बाउंस हो गया सीधा जेल होगी। यहाँ पे तो मतलब आप कुछ भी गलती करो, अगर सड़क पे आपने किस कर दिया, स्मूच कर दिया, किसी लड़की को गले लगा लिया तो आपको सीधा जेल हो जाएगी, बड़े फाइन कटेंगे। ये फाइन लगा लगा के, फाइन लगा लगा के इतने डिसिप्लिन बिल्ड कर दिया। वहां दुबई के अंदर कोई क्राइम नहीं, कोई हरकत नहीं, कोई गलती नहीं। ये विजनरी लीडरशिप अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं, इस विजनरी लीडरशिप पर अगर आप फोकस करते हैं, तो ऐसी लीडरशिप के लिए मैंने प्रोग्राम बनाया था। Okay, guys, so that's it for the day. Thank you so much. Please write down your enrollment number in the chat box.
Thank you sir. guys. Enjoy your day. Take care. Thank you, sir.